جیسا کہ آج اگر کوئی یا غوث المدد کہتا ہے تو شرک و بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، لیکن کیا حدیث مبارکہ میں یہ موجود نہیں ہے؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنگل و بیابان کی طرف جاؤ اور تمہارا جانور گم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے جنگل میں آواز دو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج وہ لوگ جو یا غوث المدد کہنے پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں ان کی بھی تھوڑی سی اصلاح چاہوں گا تاکہ وہ بھی اپنا کریکشن کر لیں۔ میں قرآن کی روشنی میں بتانا چاہوں گا، احادیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل نے اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو غیب کے اندر یعنی اس کے پیٹھ پیچھے وہ سامنے حاضر نہیں ہے اور اس کو مدد کے لیے پکارنا، کیا یہ شرک ہے یا بدعت؟ میں اسے حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سید الانبیاء پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا جس طریقے سے سید الانبیاء کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے ہوئی، ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبی جن کی نسل کے اندر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت اسماعیل کی نسل کے اندر سید الانبیاء تشریف لا کر جو مقام سید الانبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا، انبیاء کے اندر اللہ نے حضرت امام حسن کی نسل میں سیدنا غوث پاک کو پیدا فرما کر سارے اولیاء پر غوث پاک کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، حضرت امام حسن مجتبی کی زندگی کو تھوڑا سا سمجھیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ و فساد کے ازالے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی، کمپرومائز کر لیا، صلح کر لی۔ تو اس کے عوض کے اندر اللہ نے قطبیت کبریٰ کا مقام انہیں عطا فرمایا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی قطبیت کبریٰ کے مقام پر ہیں، اور قطبیت اوسط کے مقام پر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد قطبیت کے مقام پر حضرت امام مہدی آئیں گے۔ اس لیے مقام امام حسن مجتبی کے بعد ولیوں کے اندر اللہ نے غوث پاک کا مقام بہت عرف و اعلیٰ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سمجھیں بخاری شریف کی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا کرتا ہے، کتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ چلیے پہلے ولی کسے کہتے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ ولی کی ڈیفینیشن بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ کیا عام انسان ولی ہوتا ہے؟ کیا عام انسان آرڈینری انسان جو ہوتا ہے اسے ولایت کا مقام مل جاتا ہے؟ یا لمبے بال رکھنے سے ولایت مل جاتی ہے؟ کیا داڑھی اور زلفیں بڑھانے سے ولایت مل جاتی ہے؟ کیا گلے کے اندر تسبیح لٹکانے سے ولایت مل جاتی ہے؟ نہیں۔ ولی کی تعریف جو حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے فرمائی وہ یہ ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے قرب خاص کا مقام عطا کر دے وہ ولی ہوتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جسے اپنا بہت قریب کر لے۔ اور کتنا قریب، اس کو حدیث سے سمجھا دو، کتنا قریب، کتنا قریب۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا کہ فرائض کے ذریعے، فرائض کی پابندی کے ذریعے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور نوافل کی کثرت کے ذریعے بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। लेकिन ये मकाम कैसे नसीब होता है? विलायत नसीब होती है फराइज की पाबंदी के बाद। लेकिन ये आंख, कान और जबान बन जाने की जो बात है, ये कसरत नवाफिल की बुनियाद पर है। जब कसरत नवाफिल के अंदर कोई अल्लाह का नेक बंदा गिरफ्तार हो जाए या उसका आदी हो जाए, तो अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है। और इस हदीस के एंड के अंदर फरमाया गया, फिर वो जो कहता है मौला उसकी बात को कबूल कर लेता है। फिर वो जो कह दे और उसकी पनाह के अंदर जो आना चाहे, अल्लाह उसको उसकी पनाह में उसकी पनाह अता फरमा देता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात पता ये चली कि कसरत नवाफिल के जरिए अल्लाह अपने दोस्त को वो मकाम अता करता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कसरत नवाफिल के जरिए अल्लाह वो मकाम अता करता है कि अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसकी समाअत कितनी बुलंद हो गई, उसके सुनने की कैफियत कितनी बुलंद हो गई, उसकी समाअतों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसको भी हदीस से साबित कर दूं कि किस तरीके से समाअत होती है, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हजरत फारूक आजम की जिंदगी से देख लें और हजरत सारिया की जिंदगी से देख लें कि सैकड़ों मील की मसाफत है। हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा देते हुए फरमाते हैं, या सारियतल जबल, और नहावन के अंदर हजरत सारिया सुन लेते हैं। दोनों वली हैं। समाअत का आलम यह है कि कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, लेकिन मर्तबा इतना बुलंद है कि कहीं से बोल रहे हैं और सैकड़ों मील की दूरी पर आवाज सुनाई दे रही है। ये क्यों? अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुना करते हैं, जिससे वो सुना करते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह ताला ने सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को भी बहुत ऊंचा मर्तबा अता फरमाया है, बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, विलायत के ऊंचे मकाम पर हुजूर गौसुस सकलैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने फाइज फरमाया है। इस पर एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों उलमा और मशाइख का इत्तेफाक है, और खास तौर पर उनका भी इत्तेफाक है जिनको हदीस का सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर मुहद्दिस कहा जाता है, वो भी इस बात के कायल हैं। और उन्होंने अपनी किताबें हजरत गौसे पाक की शान में लिख करके उनकी अजमतों का एतराफ किया है, उनकी अजमतों को खराज पेश किया है। ऐसा नहीं है कि चंद जाहिल गली के लोगों ने मिलकर गौसे आजम के मकाम को बयान किया हो, नहीं। वक्त के जलील कद्र उलमा, वक्त के जलील कद्र मशाइख, वक्त के जलील कद्र मुजद्दिदीन, उन्होंने सब ने गौसे पाक की अजमतों का एतराफ किया है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, किसी को भी समझना है, मेरा ये जुमला हमेशा के लिए ज़हन में महफूज रख लो, किसी को भी समझना है तो किसी के कहने पर न समझो, कुरान की रोशनी में समझो, अहादीस की रोशनी में समझो, भटक नहीं सकोगे। जब कुरान और अहादीस की रोशनी में किसी इंसान को समझने के लिए तुम निकलोगे तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनका मकाम कैसा रखा है। अल्लाह अकबर। आइए मैं गौसे पाक के हवाले से बताऊं ताकि गौसे पाक की अजमतों को समझ सकें। जैसा कि आज अगर कोई या गौस अल मदद कहता है तो शिर्क व बिदअत का फतवा लग जाता है, लेकिन क्या हदीस मुबारका में ये मौजूद नहीं है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जंगलों बयाबान की तरफ जाओ और तुम्हारा जानवर गुम हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से जंगल में आवाज दो, या इबादल्लाह आईनुनी। कोई तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम किसको पुकार रहे हो वो तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम आवाज दोगे, अल्लाह किसी के जरिए तुम्हारे जानवर को तुम तक पहुंचा देगा। तो अगर किसी न देखे हुए इंसान को जंगल में आवाज देना शिर्क नहीं हो सकता, तो जिसे रब ने अपनी दोस्ती का ताज अता किया हो उस गौसे पाक को मदद के लिए पुकारना शिर्क कैसे हो सकता है? हम गौसे पाक को अल्लाह का नबी भी नहीं मानते और न गौसे पाक को माज़ अल्लाह अल्लाह मानते हैं। हकीकी मदद करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, लेकिन अल्लाह ने अपने दोस्तों को ये मकाम अता किया है कि वो उस दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह के बंदों की मदद करें और अल्लाह के बंदों की परेशानियों को दूर किया करें।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसको फिर और एक एंगल से समझाने की कोशिश करूं। आज ये कहा जाता है कि वली की मजार पर क्यों जाते हो, क्यों गौसे पाक के यहाँ जाते हो, क्यों गरीब नवाज के यहाँ जाते हो, क्यों मखदूम माहिमी के यहाँ जाते हो। तो मैं एक हदीस, एक कुरान की आयत आपके सामने पेश करूं ताकि आप समझ सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेकी करने वालों के, एहसान करने वालों के। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हजरत मखदूम माहिमी का इस उम्मत पर एहसान नहीं है? क्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस उम्मत पर एहसान नहीं है? बेपनाह एहसान है। किताब की शक्ल में, दावत व तबलीग की शक्ल में, रुश्द व हिदायत की शक्ल में, तौबा कराने की शक्ल में, बेहयाई से रोकने की शक्ल में, गुनाहों से बचाने के शक्ल के अंदर, कुरान की तफसीर की शक्ल के अंदर, इन सारी चीजों के एतबार से अगर आप देखें तो गौसे पाक का इस उम्मत पर बेपनाह एहसान है। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों के, नेकी करने वालों के। तो जब तुम उनके करीब होते हो तो वहां पहुंचकर तुम्हें अल्लाह की रहमत नसीब हो जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप इस बात को अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। गौसे पाक को जितना मर्तबा मिला, गौसे पाक को जितनी अजमतें मिली, गौसे पाक को जो मकाम मिला है, वो रब की तरफ से है। रब कदीर का फजलो करम है, उसका एहसान है। अल्लाह ने ये मर्तबा गौसे पाक को अता फरमाया। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अल्लाह ने खुसूसी करम इस तरीके से फरमाया कि अल्लाह आप देखें कि उनके इस दुनिया में आने से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद हजरत अबू सालेह को बशारत अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर। अपने मौलवियों की बात आए तो बशारत को कबूल करते हो, और गौसे पाक की बात आए तो बशारत को ठुकराते हुए नजर आते हो। अल्लाह अकबर। मैं समझाऊं, इत्तिबाए रसूल के हवाले से गौसे पाक का मकाम कितना अरफ़ो आला है। रसूल आजम के आने से पहले हजरत ईसा से लेकर हजरत आदम तक सबने बशारतें सुनाई। एक नबी आने वाला है, एक नबी आने वाला है जो अल्लाह का हबीब है। और गौसे पाक के आने से पहले सैकड़ों औलिया ने और खुद रसूल आजम ने हजरत गौसे पाक के वालिद को बशारत अता फरमाई, ए अबू सालेह, अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा, वो इतना नेक होगा और वो कहेगा मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर, और सुनो उससे एक मखलूक फायदा उठाएगी, उसकी जात से खल्क़े खुदा को बहुत फायदा पहुंचेगा। पता चला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सालेह, उनके जैसा कोई वली तो लाइए, उनके जैसा कोई परहेजगार तो लाइए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परहेजगार थे, बड़े इबादत गुजार थे। आप जरा सोचो, इतने परहेजगार, इतने इबादत गुजार जिसकी कोई इंतहा नहीं। माँ का आलम कितना अजीम था। लाइए ऐसी माँ आज की दुनिया के अंदर अगर कोई नसीब होती हो तो। अल्लाह अकबर। ऐसी माँ जैसी गौसे पाक की थी ना ऐसी माँ नजर आती है, न गौसे पाक के वालिद जैसे थे ऐसे वालिद नजर आते हैं। इतनी अजमत वाले वो थे तो अल्लाह ने बेटा भी ऐसा अता फरमाया जिसे मोहियुद्दीन, और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं मुजद्दिदीन में से किसी को भी मोहियुद्दीन का लक़ब नहीं मिला, सिर्फ गौसे पाक को मोहियुद्दीन का लक़ब मिला। ये लक़ब सिर्फ गौसे पाक, और गौसे पाक के 11 अस्मा हैं और हर इस्म के साथ मोहियुद्दीन लगा हुआ। उन्होंने दीन को जिंदा किया, दीन की आबियारी की।